Ignited Minds Tutorials is a renowned educational platform that strives to provide quality education to students. With their dedication and expertise in the field of English grammar, they have become a popular choice among Class 10 students preparing for their CBSE and Maharashtra State Board exams. One of the key features of Ignited Minds Tutorials is their video uploads on YouTube. These videos cover various topics of English grammar, ensuring a comprehensive understanding of the subject. Students can access these videos anytime, anywhere, making learning convenient and accessible. Moreover, Ignited Minds Tutorials focuses on previous year's questions for Class 10 CBSE and Maharashtra State Board exams. By analyzing and understanding these questions, they aim to provide students with an insight into the exam pattern and the types of questions that may be asked. This helps students to prepare effectively and score well in their exams. English grammar plays a crucial role in enhancing language skills and communication. Ignited Minds Tutorials recognizes this importance and provides students with a knowledge explanation of grammar rules, sentence structure, tenses, parts of speech, and more. By mastering these concepts, students can improve their writing and speaking abilities. In conclusion, Ignited Minds Tutorials serves as a valuable resource for Class 10 students preparing for CBSE and Maharashtra State Board exams. Through their YouTube videos and focus on previous year's questions, they ensure a comprehensive understanding of English grammar and equip students with the necessary knowledge to excel in their exams. Okay, Bachawadi, we are going to today cover PYQs from both State Board and CBSE on English grammar. ठीक है, ग्रामर के जो क्वेश्चंस आए उसके PYQs अपन करेंगे. ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करें यहाँ पे स्टेट बोर्ड का ही ग्रामर का क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ है. टू हैज डायरेक्टेड एनी 4 out of 5, तो मतलब ये ऑप्शंस में है. मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज टू लुक इनटू. बताइए, टू लुक इनटू एक सेंटेंस बनाना है यार, कम ऑन. अरे भाई साहब, सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो? हाँ, प्रसन्ना was asked to look into the matter. ठीक है, सिंपल. टू लुक इनटू मतलब तो बस खत्म हो गया भाई साहब. तो प्रसन्ना was asked to look into the matter. आर वी क्लियर? क्लियर? ओके ओके ओके. चलिए, सीबीएसई का सवाल है. एक स्टेट बोर्ड का रहेगा, एक सीबीएसई का रहेगा. एक ये आपका सीबीएसई का सवाल है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. यू शुड डैश योर मदर फॉर योर रूड बिहेवियर. apologize for, apologize at, apologize with और apologize to. हाँ, नहीं, apologize to. ठीक है, यहाँ पे टू योर मदर है ना. apologize for, अगर तुम्हारे बिहेवियर पहले आता, यू शुड apologize फॉर योर बिहेवियर, ऐसा होता था. लेकिन किसको apologize कर रहे हैं आप? अपनी मम्मी को, तो इसीलिए apologize to your mother होगा. तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, डी, apologize to your mother for your rude behavior. ठीक है, ये सब 2023-24 के सवाल हैं सीबीएसई के. ठीक है, pick out the infinitive form of the following sentence. I just had to do it. infinitive क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, had नहीं होगा, to do. ठीक है, ये दोनों भी आपके infinitive में आएंगे. both will be infinitive. ठीक है, ये आपका स्टेट बोर्ड का सवाल है. सीबीएसई का है भाई साहब. रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड अ वेटर. कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द वेटर्स रिप्लाई करेक्टली. तो यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करनी है बेसिकली. ठीक है, कस्टमर, वेटर, कम हियर, द प्लेट इज डर्टी. वेटर, आई विल चेंज इट सर. तो ये पूरे कॉन्वर्सेशन को, ये तो दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है भाई साहब, ये वाला कॉन्वर्सेशन और ये वाला, इसको आपको इनडायरेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, so the customer asked the waiter to come there. ठीक है, he pointed out that the plate was dirty. The waiter politely offered क्या? हाँ, change of plate. Okay, the waiter politely offered to change the plate. एक ही प्लेट है वैसे. ओके, ठीक, to change the plate. ठीक है, the waiter politely offered to change the plate. Are we clear? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. ये सीबीएसई का सवाल था. स्टेट बोर्ड का सवाल है. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुएशन?
एनी आइडिया? कॉमा वॉमा ठीक से लगाने का, ओके ठीक है, कॉमा फुल स्टॉप सब कुछ, एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर लगता है तो वो भी ठीक है। डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड, तो आपको भाई साहब यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, डिड को हम कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे, डिड, ठीक है, यू हियर हिम, डिड यू हियर हिम, ठीक है, ये कॉमन हो गया भाई साहब, ठीक है, ही विस्पर्ड, ही विस्पर्ड, तो ये आपका प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स के साथ, डिड यू हियर हिम क्वेश्चन मार्क्स के साथ, ठीक है, ही विस्पर्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सीबीएसई का सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस, डैश यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन, हाँ, will may shall might, so this will be will, ठीक है, will you help me cross the road young man, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड, स्टेट बोर्ड का सवाल है, एंडोरेंस, ठीक है, द वर्ड इज एंडोरेंस, इसमें से आपको भाई साहब दो हाँ एंड एंड एक वर्ड हो गया भाई साहब, है ना, और डांस, ओके चलिए भाई साहब, और रेस, ओके चलिए रेस, एनीथिंग एल्स, हाँ, रन, ओके चलिए भाई साहब रन, हाँ हाँ 4 है, ठीक है, 4 लेटर वर्ड है, ओके ओके 4 लेटर वर्ड है, तो आप को भाई साहब इसको नहीं ले सकते, चलिए ये हो जाएगा रन। फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स, और कोई वर्ड बना सकते हैं क्या भाई साहब इसमें? एंड्योर एक वर्ड होता है जिससे एंड्योरेंस आ रहा है बेसिकली, ठीक है, तो एंड्योर लिख सकते हैं अपन, हाँ केन, हाँ केन लिख सकते हैं, कब खाए हो लास्ट, ओके केन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके 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 4 लेटर वर्ड्स है। सीबीएसई का सवाल है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, तो एक सेंटेंस है और उसमें कुछ करेक्शंस हैं। 20 years ago, ठीक है, किड्स एट स्कूल हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 20 years ago, ये तो करेक्ट लग रहा है भाई साहब, ठीक है, किड्स एट स्कूल की जगह पे भाई साहब हो जाएगा इन, ठीक है, किड्स इन स्कूल हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, तो ईयर्स क्या ये एरर है? नहीं, करेक्ट है, क्योंकि जब आप 20 बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लूरल हो गया ये, ठीक है, ओके देन एट की जगह पे इन ये वाला होगा भाई साहब, करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट करेक्शन है। हैड नहीं, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो ये करेक्ट है भाई साहब, ठीक है, द को एन से रिप्लेस करना है, क्या आर्टिकल देख लो यहाँ पे, द इंटरनेट या एन इंटरनेट, ठीक है, द इंटरनेट ही होगा क्योंकि हम पर्टिकुलरली इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो ये सब आपका भाई साहब करेक्ट है। सो व्हाट इज द करेक्शन दैट हैज टू बी मेड हियर, दिस इज द करेक्शन, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्शन होगा ये, ओके। यहाँ पे है भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स कंप्लीट करना है, जैसे आप करें यहाँ पे राइट लिखा है, तो इसका भाई साहब, हाँ ईट, हाँ ठीक है लिख सकते हो ईट, लेकिन ध्यान रहे कि आपको टी से भी कुछ बनाना पड़ेगा फिर, हाँ टीच, टीच, हाँ टीच लिख सकते हैं, चलिए, टाइगर कहां से वर्ब हो जाएगा, कौन है ये, टाइगर, टाइगर बोल रहे थे, लायन दिखाएंगे हम तुमको यहाँ पे, टाइगर, टीच, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी, नेक्स्ट वर्ड भी तुमको सोचना पड़ेगा, हाँ हियर, ओके हियर, रन, रनिंग, ठीक है, ये सब आपके वर्ब्स होने चाहिए, ठीक है, ये सब आपके वर्ब्स होने चाहिए, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। सीबीएसई का सवाल है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, हाँ दूंगा ना, नो न्यूज आर गुड न्यूज क्या होता है भाई साहब, न्यूज मतलब खबर होती है, उसका हमेशा इजी होगा, ठीक है, इट विल नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्मेट, ठीक है, तो इट विल नेवर, इट विल ऑलवेज हैव अ सिंगुलर फॉर्मेट, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? न्यूज, राइट द रूट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, रूट वर्ड मतलब जिससे ये बना है, ठीक है, अनएबल किससे बना है भाई साहब, ये एबल से, ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब एबल, एबल से बना है आपका अनएबल, सो दिस इज बेसिकली व्हाट द रूट वर्ड। स्टेट बोर्ड का सवाल है भाई साहब, ठीक है, ओके। सीबीएसई का सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट व्हेन अ सैटेलाइट dash launch the rocket begins by going slowly upward, क्या is launch मतलब ए वाला ऑप्शन, when a satellite is launched the rocket begins by going slowly upwards, ठीक है, yes this would be the correct option, ठीक है। when a satellite is launched obviously where नहीं हो सकता, ठीक है, are नहीं हो सकता क्योंकि plural formats हैं, ठीक है, when a satellite is launched the rocket begins by slowly going upwards, clear है, okay okay okay। स्टेट बोर्ड का सवाल भाई साहब, चूज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, नीता स्पोक इन एन, शरायु क्या होगा, जल्दी 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 फटाफट, इन एन एक्साइटेड टोन, ठीक है, एक्साइटेडली नहीं होगा, इन एन एक्साइटेड टोन, ठीक है, ओके। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स सीमा एंड अनु बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस, सीमा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, अनु आई एम गोइंग टू डॉक्टर सेन्स हाउस, तो इसको भाई साहब इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। In response to the question about what bought Anu there, Anu says, बोलिए क्या होगा आंसर, हाँ, अरे आई कैसे हो जाएगा, आई नहीं हो पाएगा ना भाई साहब, ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में तुम आई नहीं बोल सकते, एक चीज मिस कर रहे हो क्या, दैट मिस कर रहे हो, ठीक है, तो अनु सेज दैट, तो जब भी आप डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे दैट लगा नहीं लगाना, ठीक है, अनु सेज दैट क्या होगा भाई साहब, ये कहा दैट शी, I am going to the doctor in response to the question that she was going to Dr. Sain's house, ठीक है, clear है भाई साहब। In response to the question about what brought Anu there, Anu says that she was going to Dr. Sain's house, ठीक है, clear है भाई साहब, ओके ओके ओके। स्टेट बोर्ड का सवाल है, fill in the blanks with the proper form of the verb as per the subject, mother dash a good meal, cooks, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कुक्स, ठीक है, मदर कुक्स अ गुड मील। जब भी आपका ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहेगा तो आपका ये जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, तो वर्ब आपका भाई साहब प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे मदर्स होता तो यहाँ पे एक कुक हो जाता था, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। Identify the error in the given sentence and supply the correction. Behind every success film, there is a lengthy creative process. महबूब क्या होगा ये, संजम जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी एरर बताना इसमें, ये सेंटेंस है, behind every success film there is a lengthy creative process, रक्षिता जल्दी, हाँ, तो यहाँ पे सक्सेस की जगह पे क्या हो जाएगा भाई साहब, सक्सेसफुल फिल्म, ठीक है, सो द एरर हियर इज सक्सेस और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब सक्सेसफुल, ठीक है, द करेक्शन अप्लाइड, क्लियर है, ओके ओके ओके। स्टेट बोर्ड का सवाल है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज टू गेट आउट ऑफ, एवरी डे आई एम टोल्ड टू गेट आउट ऑफ क्लास, हाँ लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है, टू गेट आउट ऑफ तो लिख सकते हैं ना भाई साहब, एक सेंटेंस ही तो बनाना है यार, कम ऑन, ठीक है, तो every day Yuvraj is told by the teacher to get out of the class, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ये एक हो गया फिजिकल मीनिंग वाला सेंटेंस। अगर आप दूसरे किसी मीनिंग से भी अगर एक टू गेट आउट ऑफ मतलब जैसे अगर आपका होता है एक सिचुएशन है उससे आप कैसे निकल रहे हो, ठीक है, टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, सो
we have to do some deep thinking and analysis to get out of the crisis. ठीक है, इस क्राइसिस से निकलने के लिए आपको कोई डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी टू गेट आउट ऑफ द क्राइसिस. क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. Ritu met Anita and saw her crying. Report Ritu's question. Ritu, Anita, what is the matter? इसको भाई साहब इनडायरेक्ट में लिखना है. ओए वरद, क्या होगा? इनडायरेक्ट में लिखना है, रिपोर्टिंग करनी है. चलिए फटाफट फटाफट. अरे भाई साहब, तुम जो है फॉर्मेट वही लिख रहे हो. ये अपॉस्ट्रोफी वगैरह नहीं होगा उसमें. इनडायरेक्ट में रिपोर्ट करना, ये डायरेक्ट है. हाँ, रितु सेड दैट. सेड की जगह पे और क्या लिख सकते हो? नहीं, तुम जब देखो. हाँ हाँ, आस्ट. ठीक है, रितु आस्ट. ठीक है, रितु देखो, जब क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो तुम ये सेड नहीं लिखोगे. ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम रिक्वेस्ट लिखोगे. ठीक है, तो रितु आस्ट, ऐसा नहीं है कि सेड गलत होगा, लेकिन अ मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट वाज दैट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. रितु आस्ट अनीता व्हाट द मैटर वाज, और व्हाट वाज द मैटर. ठीक है, रितु आस्ट अनीता व्हाट द मैटर वाज. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन. कंपाउंड वर्ड्स मतलब जो दो वर्ड से बने हो, जैसे नॉन वेज, डोरवे. बाप रे कितना लंबा भाई साहब, डोरवे. ओके भाई साहब, स्पाइडरमैन तेरे को वहां पे सुपरमैन बना देंगे. डोरवे. हाँ, मूनलाइट. ओके, मूनलाइट. हाँ, ब्रेकफास्ट हो सकता है. कौन बोला गुड बॉय? ब्रेकफास्ट हो सकता है. एनीथिंग एल्स? फुटबॉल. हाँ ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल. ओके, व्हाट एल्स? हाँ, गुड नाइट. हाँ, गुड नाइट हो सकता है. नहीं, गुड नाइट इज अ विश. नो, गुड नाइट नहीं हो सकता. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली कंपाउंड वर्ड्स. ओके, ब्लैक बोर्ड हो सकता है. तो लेट्स से, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया. सीबीएसई का सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन डैश एडुकेटेड माइंड कैन टीच मेनी. संजम. एंड क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब एक वावल है. ठीक है, स्टार्टिंग विद अ वावल, सो हियर इट विल बी एन एडुकेटेड माइंड कैन टीच मेनी. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. आपके जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन है, आपको ग्रामर में पीएचडी करके उसको नहीं करना है. आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ेंगे, अगर थोड़ा बहुत क्या भाई साहब, आपका सब कुछ इंग्लिश में है. इतना माहिरत आपको आ जाना चाहिए. आप किसी भी ईयर के पेपर को उठाकर देख लो, कोई बहुत डिफिकल्ट ग्रामर नहीं है. कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का उसका कोई खिचड़ी नहीं बनाने वाला. ठीक है, ओके. टेक आउट द जेरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिलीज. टेकिंग, गुड. ठीक है, तो आपका भाई साहब दिस विल बी टेकिंग, दिस विल बी द जेरंड अप्लाइड हियर. ठीक है, ओके. सीबीएसई का सवाल है भाई साहब, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ डायलॉग बिटवीन राज एंड हिज वाइफ. आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड्स फॉर डिनर. ठीक है, आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड्स फॉर डिनर. आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स टू. Raj told his wife that he had invited his friends for dinner. The wife added that. इसमें ऑप्शन देने आपको भाई साहब, कौन सा होगा? बोलो 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 जल्दी भाई. शी विल इनवाइट. यहाँ पे विल है ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, आई विल.
ठीक है, तो शी विल इनवाइट हर फ्रेंड्स टू, सिंपल, ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके ओके, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। तो पहला बात तो आपको भाई साहब यहाँ पे ए कैपिटल में डालना पड़ेगा, आफ्टर ऑल यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, इन्वर्ट कॉमा लगाएंगे भाई साहब, कहां मरे जा रहे हैं उसमें, ठीक है, ही डजंट, डजंट के बीच में कॉमा लगेगा ये, ठीक है, ही डजंट पे मी, ठीक है, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, यहाँ पे भाई साहब आप एपोस्ट्रोफी लगाइए, ठीक है, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, क्लियर है भाई साहब, पंक्चुएशन मार्क, ओके ओके ओके। सीबीएसई का सवाल है, आइडेंटिफाई द एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सप्लाई द करेक्शन, यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स, द इविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन इनटू आवर कंट्री। नया क्या होगा, हाँ, इन, इन तो है ही नहीं, इनटू है, तो इनटू का क्या करना है, इन, ओके, तो यहाँ पे भाई साहब है इनटू, ठीक है, इनटू हो गया, इसका करना है भाई साहब इन, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली, ठीक है, व्हाट यू हैव टू रेक्टिफाई, ठीक है, द इविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन इनटू आवर कंट्री की जगह पे हम लिखेंगे द इविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके, सो दिस इज द एरर एंड दिस इज द करेक्शन अप्लाइड। फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड, हाँ एक तो दूंगा ना, मुंह फाड़ रहा है बैठ के, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड, चलिए भाई साहब फटाफट, हाँ हाँ, स्पीकिंग लास्ट टू लेटर्स इन विच द लास्ट, अरे रुको ना भाई साहब, क्या इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड, मतलब ये वाला ना, इसको डबल कर दिया, ओके ठीक है, रनिंग में, ओके, और क्या क्या बोला, स्विंगिंग, स्विमिंग, ओके ओके, ये वाला डबल हुआ है, ठीक है, स्विमिंग, एनीथिंग एल्स, हाँ, टीमिंग, टिनिंग, ठीक है, लास्ट टू वर्ड्स, सिंगिंग नहीं आएगा, SINGING है ना, सिंगिंग नहीं आएगा, हाँ तुम यही करो, एम्बैरसिंग, कॉलिंग, ओके, नहीं कॉलिंग में तो कॉल ही था ना, कॉल से बनाए, कॉल से कॉलिंग बनाए ना, तो पहले से डबल एल था उसमें, तो कॉलिंग में नहीं बनेगा, हाँ कौन सा, स्किपिंग, एस के पहले जो था उससे एक और ऐड होगा, ऐसा स्किप होता है तो एक और ऐड हो जाएगा, स्किपिंग, ओके ठीक है भाई साहब, हाँ, बेगिंग, हाँ तुम्हारे माइंड में यही आएगा, PEG होता है ना, हाँ, हमिंग, नहीं लेकिन हमिंग खुद ही एक वर्ड है, यहाँ पे डबल हुआ है ऐसा, हमिंग साउंड इज ऑलरेडी, हमिंग इज ऑलरेडी अ वर्ड, हाँ, PEE पीप होता है ना, लेकिन ING हो जाएगा ये, डबल पी नहीं लगेगा इसमें, इसमें डबल पी नहीं लगेगा भाई साहब, कहाँ डबल पी लग रहा है स्वीपिंग में, SWEP, इतना तो स्वीप तो है ही, ING लग रहा है, जॉग, JOG है ना, जॉग, ओरिजिनल वर्ड पे एक और ऐड हो रहा है, डबल हो रही है भाई साहब, जॉब, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ओरिजिनल वर्ड जहां रहेगा उस पर एक और अल्फाबेट जोड़कर इसको बनाया गया, ठीक है, ओके, सो लास्ट लेटर इज डबल, लास्ट लेटर का देखो यहाँ पे लास्ट लेटर ये डबल हुआ है, ये लास्ट लेटर ये डबल हुआ है, सो वॉट एवर इज द लास्ट लेटर इन द ओरिजिनल वर्ड दैट हैज बीन डबल, ठीक है, जो भी लास्ट लेटर रहेगा उस पे उसका डबल हुआ है भाई साहब, ओके, filling in the blanks by choosing the correct option to complete the following report, report है basically मतलब आपका indirect से direct या direct से indirect, the inspector dashed the group sitting behind the shed and took them by surprise, walked up, walked away, walked into, walked up on, hmm? C, yes, C would be the correct option, walked into the group sitting behind the shed
and took them by surprise. ठीक है? Make a meaningful sentence of your using the following phrase. Drop out. I will drop out and become a Bill Gates. बताइए क्या करेंगे? हाँ, Sachin Tendulkar was a dropout. Bill Gates was a dropout. So I will also become a dropout. Bill Gates was a dropout from academics. ठीक है? Read the conversation between a driver and his passenger. Complete the sentence by reporting the passenger's reply correctly. Driver, do the bus timings suit you? हाँ, तुम भाई साहब वो टाइमिंग ही देखो. Do the bus timing suit you? Yes. If I catch the 9 a.m. one, I reach office on time. सीबीएसई का सवाल है भाई साहब. ड्राइवर और पैसेंजर का कॉन्वर्सेशन है, तो इसको भाई साहब रिपोर्ट करना है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. The driver was trying to figure out whether the bus timings were convenient to the passenger. The passenger clarified that. बताइए, इसको करना है, इसको आपको भाई साहब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है. अरे यशविता क्या होगा? The passenger clarified that that if नहीं कैच नहीं होगा. That if we catch, हाँ, catches the 9 a.m. one. अरे ही शी कहाँ है भाई साहब? ये पैसेंजर है. हाँ, ही शी होगा, करेक्ट. If I catch, ठीक है. The passenger clarified that if, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब if. यहाँ पे ही और शी दोनों भी हो सकता है, क्योंकि पैसेंजर का जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है. ठीक है? If he or she catches the 9 a.m. one, यहाँ पे लिखा है ना 9 a.m. one. ठीक है? He or she will reach office on time. ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. Pick out the present participle from the following sentence. ये तो इजी है. Win, where, but प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें कौन सा हो जाएगा भाई साहब? शाइनिंग. ठीक है? तो शाइनिंग बेसिकली आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. His eyes were shining, so this will be the present participle. ठीक है? Okay. Select the correct option to fill in the blank for the given line from a fashion magazine. The advertisement read dash we dress your day question mark make you special pick the perfect look. तो बेसिकली तुमको यहाँ पे एक मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करना है ना. कैन मस्ट क्यों नहीं होगा? नहीं. विल और टू नहीं, कैन ही होगा. यस. ठीक है? सो कैन वी ड्रेस योर डे मेक यू स्पेशल मेक पिक द परफेक्ट लुक. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. Either, okay, fill in the blanks. स्टेट बोर्ड का सवाल है. fill in the blanks with the proper form of the verb given in the bracket. Either of the two is or are guilty. हाँ, आर होगा कि इज? दोनों में से कोई एक गुनहगार है. तो इतनी देर से आर क्यों बोल रहे थे भाई साहब? दोनों में से कोई एक अगर है तो वो सिंगुलर हो जाएगा ना. तो एक के लिए हम इज यूज करेंगे या आर? इज. तो व्हाई वर यू सेइंग आर? भाई साहब दोनों में से कोई एक गुनाहगार है ना. ईदर ऑफ द टू इज गिल्टी. ठीक है? अगर दोनों गुनाहगार होते बोथ आर गिल्टी तब हम लिखते थे बोथ आर गिल्टी होता था. ठीक है? वन ऑफ देम इज गिल्टी. क्लियर है भाई साहब? ठीक है? ईदर ऑफ द टू इज गिल्टी. क्लियर है? ओके. Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line from a news report. CBSE का सवाल है. Yesterday, 2 men were rescued from a deep sewer by a policeman.
ठीक है, तो यहाँ पे टू बोल दिया है तो मैन नहीं हो सकता, यहाँ पे दिस हैज टू बी मैन। तो ये करेक्ट है भाई साहब। रेस्क्यू, रेस्क्यूड करेक्ट है, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं हम, बात हो रही है येस्टरडे की, तो यहाँ पे रेस्क्यूड ही होगा। फ्रॉम, फ्रॉम ही होगा क्योंकि डीप सीवर है भाई साहब, ठीक है। बाय अ पुलिसमैन, ठीक है, बाय अ पुलिसमैन भी करेक्ट है, so this is the one that needs to be corrected, so the option A would be the correct option। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके। फ्रॉम पास्ट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड, ओए भरत, लास्ट लेटर इज डबल्ड, चलिए फटाफट। हाँ, अरे पास्ट है, इन अगर हो गया तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। आई एम बेटिंग ऑन दिस गेम, तो मतलब अभी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, अरे चाचू पढ़ो तो क्या है वो, पास्ट पार्टिसिपल बनाना है जिसमें भाई साहब लास्ट लेटर का डबलिंग करना है। हाँ, सक्सेस नहीं, सक्सीड नहीं, हाँ सक्सेस का जैसे सक्सीड है, पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तुम्हें। सक्सेस तो हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं ना। हाउ वुड यू अचीव सक्सेस, ऐसा अगर हम पूछे तो वो फ्यूचर टेंस में चला गया। सक्सीड पास्ट है। तुमको बेग क्यों मतलब obsessed with the word beg, okay। from the past participle in which the last letter is doubled, लास्ट लेटर आपका डबल्ड है, पास्ट पार्टिसिपल। को भी नहीं याद आ रहा भाई, तो क्या होगा पास्ट? हाँ, अभी एक भी वर्ड क्यों नहीं याद आ रहा है यार? हाँ, सक्सीड, लास्ट लेटर कहाँ डबल हो रहा है यार? सक्सेस स्पेलिंग क्या है भाई साहब? हाँ, ड्रॉप्ड, डबल डी कहाँ है? डी आर ओ पी है ना, ड्रॉप, ये है ना, कि पी लिखेगा, एक और पी लगेगा ना। हाँ चलेगा, ये हो सकता है, एक और पी लग रहा है ना, डी आर ओ पी पी ई डी, यस ये चलेगा। हाँ, रॉब, हाँ हो सकता है, आर ओ बी, हाँ बी ई डी हो सकता है भाई साहब। हाँ, तुम भाई साहब एम्बेरस को लेकर पकड़े रहो, ये बेगिंग को लेकर पकड़े रहे भाई साहब। तो अंग्रेजी में एक गाना भी है ना, आई एम बेगिंग। हाँ, शब्द, डी यू बी, लेकिन डी यू बी, नहीं नहीं, डी यू बी है ओरिजिनल वर्ड कि डी यू डबल बी है? ओरिजिनल वर्ड डी यू बी है ना। हाँ तब हो जाएगा बस। हम्म, सब सब, सब टाइटल, सब टाइटल, यस, एस यू बी, फिर ये, लेकिन शब्द होता क्या है, आई डोंट नो, ये क्या होता है वैसे, मेरे को नहीं मालूम। सब टाइटल होता है लेकिन सब्ट्रैक्टेड, बट फॉब, ये क्या होता है वैसे, मेरे को नहीं मालूम। ट्रोल, ट्रोल का टी आर ओ एल एल होता है ना, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी है ना, दो एल है उसमें। हाँ एडेड हो सकता है, एडेड हो सकता है। ए, नहीं यार एडेड भी नहीं है, ए डी डी होगा ना। चुप, इसमें और भी होंगे यार, वैसे इतना ही निकल रहा है। हाँ, अब यस हो सकता है, ठीक है।
ओके चलिए भाई साहब ये वाला करना है. राइट. Complete the given narrative by filling in the blanks with the correct option. The students dash to participate in the workshop and submit a report, right, at the end of the day to the English teacher. Where asked, had been asked, will have asked, where asked. कौन सा होगा? Okay. So the students were asked, okay, the students were asked to participate. The students were asked to participate in the workshop and submit a report at the end of the day to the English teacher. Okay. स्टेट बोर्ड का सवाल है. कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स. हाँ एडजेक्टिव है यहाँ पे, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव्स है. ठीक है. ओके लार्ज. चलिए भाई साहब लार्ज. और ये सिर्फ इतना ही नहीं सोचना, आगे का भी सोचना है. ई तो सब ई बनाते रहोगे. हाँ फिर से आएगा ई एनलार्ज. हाँ एनलार्ज. एमिट कर दो भाई साहब इसमें, और क्या है, सब ई में खत्म कर दो भाई साहब. क्या है, बोला तो नहीं है ना. एमिट हो गया भाई साहब. नहीं एमिट तो वर्ब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव नहीं होगा. एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है भाई साहब. अगर इसको एनलार्ज कर दिया तो बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा? ड्रिवन. राइट. Okay, fill in the blanks by using the correct form of the word given in the brackets for the given portion of a letter. Subject request for permission to participate in the meet. ठीक है. सीबीएसई का सवाल है. डियर सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द फोर्थ कमिंग इंटर स्कूल कल्चरल मीट. आई डैश इंटरेस्ट इन टेकिंग पार्ट इन द डांस ड्रामा. संकेत क्या होगा ये? संकेत इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी खड़े होके देख ले भाई साहब क्या होगा. आई एम इंटरेस्टेड खत्म हो गया भाई साहब. आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन द डांस ड्रामा. ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा सेंटेंस है. ओके पंक्चुएट द फॉलोइंग. यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक ही आस्क्ड. ये आपका एक स्टोरी है ना शायद, म्यूजिशियन पे, जिनको सुनाई नहीं देता था, है ना तो ध्यान दो. नहीं नहीं स्टीवन हॉकिंग नहीं भाई साहब, जिनको सुनाई नहीं देता था. देखो तुम्हारे तुम्हारे करिकुलम में ही है ना वो, तो उनका नाम बैक था. देखो ठीक है. तो दिस इज बेसिकली अ नेम, याद कीजिए. इट हैज टू बी इन कैपिटल लेटर. ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए वरना आपका गलत हो जाएगा. ठीक है. तो वाई तो होगा ही कैपिटल लेटर में क्योंकि शुरुआती है. ठीक है. यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक. ठीक है. ये आपका कैपिटल लेटर हो गया भाई साहब, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया. हाँ ही आज क्या ये सेट हो जाएगा. ही आज, हाँ चलिए ही आज. ठीक है. यू हैव नेवर हर्ड ऑफ. सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि ये नाम है एक म्यूजिशियन का, और ये आपके पाठ्यक्रम में है. ठीक है. तो दिस विल बी बेसिकली कैपिटल लेटर. ये आपका स्मॉल लेटर में दिया हुआ, ये भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, अदरवाइज दिस विल गो रॉन्ग. ठीक है, क्लियर है. ओके. रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय एक वो था ना आइंस्टाइन किसी से मिला था. हाँ तो उसने बोला ना कि तुमको म्यूजिक, उसको म्यूजिक नहीं समझ में आता था. ठीक है. ओके. ग्रैंडसन, grandpa, can you tell me what inspired you to set up a school in the village? Grandfather, seeing the lack of adequate facilities and the children's eagerness to learn. Okay. In response to the question about his reason for setting up of a village school, the grandfather says that after, okay, क्या है, after seeing the lack of
adequate facilities, adequate facilities, the lack of adequate facilities, and the children's eagerness towards learning. Yes, towards learning, towards learning. He decided to set up a school. Okay, he decided or inspired. He got inspired to set up a school. Right, to set up a school. Village का mention तो already है, ठीक है. In response to the question about his reason for setting up of a village school, the grandfather said that after seeing the lack of adequate facilities and the children's eagerness towards learning, he decided to set up a school. ठीक है, clear है? Find 4 hidden words having at least 4 letters from the given word. Proclamation. हाँ, काम 4 letter word है, ठीक है. चलिए वैसा काम और claim. Okay, claim, CLAIM. हाँ, nation. Okay, nation. notion दो वो है क्या भाई साहब? notion. Okay, notion. हाँ, लोकेशन. तो एक मिनट रुक जा, यही होना, ठीक है. लोकेशन. ओके, मोशन. ओशन. PO आर कहाँ है? अच्छा, PO ओशन. PORTION. ठीक है, काफी है. ओके, सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई साहब, आइडेंटिफाई द एरर. यहाँ पे आपको एरर आइडेंटिफाई करना है इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन. When I was a child, my grandmother often repetition the story of her childhood days. तो repetition की जगह पे क्या हो जाएगा भाई साहब? repeat. ठीक है, so this will be replaced by repeat. ठीक है, this is going to get replaced by repeat. यहाँ पे correction भाई साहब किसका है? repetition. repetition gets replaced by repeat. ठीक है, okay. Spot the error and rewrite the correct sentence. स्टेट बोर्ड का सवाल है. All the great religions teaches us to take care of our children. रुक जाओ. hey निधि, देखो 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 भाई साहब. hey सोहम. हाँ, टीच होगा, टीचर्स की जगह पे टीच होगा, बस करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो यस करेक्ट है भाई साहब. यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं ना, तो आपका जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है तो वर्ब आपका सिंगुलर में हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे रिलीजन होता तो यहाँ पे टीचर्स होता. माई रिलीजन टीचेस दिस. ठीक है, ऐसा बोलते थे हम, लेकिन यहाँ पे ऑल रिलीजन्स हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टीच. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट? ऑल द great, all the great religions teach us to care for our children. ठीक है, all ओए क्या रहा है? all the great religions teach us to care for our children. ठीक है, तो टीचर्स का भाई साहब टीच हो जाएगा. ओके. Sunil shared some information with Sunita about the story he was reading. Report Sunita's question. What was the theme of the story? एक दैट नहीं लगाया तुमने. ठीक है, जब भी भाई साहब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट हैज टू बी पुट. ठीक है, ओके. बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा? सुनीता सुनीता आस्ट सुनील, नहीं, सुनीता आस्ट सुनील. अगर आपने आस्ट लिख दिया है ना, सुनीता आस्ट सुनील, तो दैट नहीं भी लिखेंगे तो भी चला. सुनीता आस्ट सुनील अबाउट द थीम ऑफ द स्टोरी. ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सुनीता आस्ट सुनील अबाउट द थीम. जैसे यहाँ पे ही वॉज रीडिंग भी है, अबाउट द थीम ऑफ द स्टोरी
that he was reading. That he was reading. ठीक है? Sunita asked Sunil about the theme of the story that he was reading. Clear है भाई साहब? Okay, okay, okay. Arrange the following words in the alphabetical order. डिक्शनरी में भाई साहब कभी अभी तो आजकल गूगल में सब चल रहा है. डिक्शनरी में जब आप सर्च करते हैं किसी वर्ड को तो आपको देखना पड़ता है. तो यहाँ पे देखो सब में आई एन कॉमन है. ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा आई एन के बाद सब चेंज हुआ है. तो यहाँ पे वी आया है, डी आया है, टी आया है और क्यू आया है. तो पहले कौन आएगा भाई साहब? डी. तो दिस विल बी 1. ठीक है, डी के बाद इन क्यू, डी के बाद क्यू आर एस टी यू वी. ओके, तो डी के बाद आएगा भाई साहब आपका क्यू. ठीक है, सो दिस विल बी द सेकेंड वन. ठीक है, क्यू आर एस टी, तो ये हो गया आपका भाई साहब थर्ड. यू वी, ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ. ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भाई साहब आपका पहला आ जाएगा इनडिस्प्यूटेबल. इनडिस्प्यूटेबल. दूसरा आपका आ जाएगा भाई साहब क्या? इनक्यूजिटिव. दिस विल बी इनक्यूजिटिव. ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा भाई साहब इंटरैक्शंस. इंटरैक्शंस. ठीक है, और चौथा है भाई साहब आपका इन्वेंशन. ठीक है, इन्वेंशन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये आपका डिक्शनरी में जैसे वर्ड होता है वैसे. ठीक है, okay, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the slogan by the Animal Welfare Board. Dash, we cut trees and destroy natural habitat. Stop before it is too late. तो हम क्या जाएगा? डैश, जल्दी जल्दी जल्दी. स्लोगन है, स्लोगन. स्लोगन इंस्पायरिंग होनी चाहिए, मतलब आपके जो अपील करे. तो दिस हैज नहीं, कुड तो एक पॉसिबिलिटी हो गई. यहाँ पे आप बोल रहे कि सारे ट्रीज को हम काट डालते हैं ना भाई साहब. ठीक है, स्टॉप ऐसा बोलना चाह रहे हैं, सारे ट्रीज को काट डालो. ठीक है, मस्ट वी कट, तो यहाँ पे मस्ट हो जाएगा, दिस विल बी मस्ट. ठीक है, मस्ट वी कट ट्रीज, मस्ट वी कट ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, स्टॉप बिफोर इट इज टू लेट. ठीक है, क्लियर है? ओके, डू एज डायरेक्टेड. भाई साहब ये आपके स्टेट बोर्ड का सवाल है 2019 का. मेक टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब. ध्यान दीजिएगा, एक में आपको एज अ नाउन यूज करना है और दूसरे में आपको एज अ वर्ब यूज करना है. यू विल हैव टू बेसिकली डिफरेंशिएट. क्या हो जाएगा बोलो फटाफट? एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब. बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए. चलिए, नाउन, नाउन को यूज करो भाई साहब. ड्रीम, ड्रीम में नाउन को यूज करो फटाफट. आई सॉ यू इन माई ड्रीम. नहीं, ड्रीम नाउन नहीं है यहाँ पे. रे की बात बोल रहा है. हाँ, आई ड्रीम. तुम जो कर रहे हो वो क्या होगा? वर्ब ना. तुम तुम अगर सपना देख भी रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, तो तुम यू आर बेसिकली रिलेटिंग टू अ वर्ब. हाँ, तुम वर्ब का बनाना है तो पहले बना दो वैसा. अगर तुमको वर्ब का बनाना है तो करो. ठीक है, आई, हाँ हाँ, ये नाउन होगा. यू कैन विन इन योर ड्रीम्स, ये नाउन होगा. ठीक है, यहां पे जैसे आई सॉ यू इन माई ड्रीम. ठीक है, ये वाला जो है दिस इज वर्ब. दिस इज बेसिकली वर्ब. ठीक है, और अगर आप यहां पे लिख रहे हैं जैसे ड्रीम्स कन्वर्टेड इनटू एक्शंस मेक अस सक्सेसफुल. ठीक है, ये जो है भाई साहब आपका नाउन में हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे वर्ब और नाउन दोनों फॉर्मेट में आपको एक वर्ड को यूज करना है. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Select the correct option to complete the narration of the dialogue between Shyam and Shivam.
Have you seen the actor's latest film? Yes, I have. The actor has done a marvelous job. Shyam met his friend Shivam and they began talking. Shyam asked Shivam whether he had seen the actor's latest film. Shivam affirmed and said that the actor has done a marvelous job, that the actor had done a marvelous job, that the actor has been doing a marvelous job, that the actor could have done a marvelous job. Had done क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? The actor had done a marvelous job. हाँ तो पास्ट टेंस ही हो गया ना, आप मूवी देख कर आ रहे हैं ना, तो आपने देख लिया तो द एक्टर हैड डन होगा ना, समझ में आ रहा है? देखो दोनों भी सेंटेंसेस आपको करेक्ट दिखेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता हैज बीन डूइंग, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कुड हैव डन, तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ही आपने चेंज कर दिया, ठीक है, इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में सिर्फ इसका ही फर्क है, एक में हैज है और एक में हैड है, तो हैड भाई साहब परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया, और एक्चुअली में ये पास्ट टेंस में ही है क्योंकि आप मूवी देख कर आ रहे हैं, ठीक है, so the actor had done a marvelous job. This would be the correct option. Clear hai? Are we clear on this one? Okay. We saw a tree bare all leaves. इसको भाई साहब रीराइट करना है, स्टेट बोर्ड का सवाल है, a tree bare. चलाइए क्या हो जाएगा? नया क्विक क्विक जल्दी, सक्षम जल्दी जल्दी, बता जल्दी बताओ क्या होगा? ज्योति क्या होगा? We saw a tree bare of all leaves. इसको भाई साहब रीराइट करना है, a tree bare. अरे सिंपल है ना भाई साहब, a tree a tree bare of all leaves, a tree bare of all leaves was seen, अभी यहाँ पे we है तो by us, ठीक है, clear है, a tree bare of all leaves was seen by us, simple, ठीक है, are we clear on this one people? Okay, सीबीएसई का सवाल है, fill in the blanks with the correct option. There is something wonderful waiting dash her when she reaches home. ठीक है, तो दिस विल बी फॉर हर व्हेन शी रीचेस होम, ठीक है, क्लियर, इजी. द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये आपका फ्यूचर में है, विल है ना, द डॉल्फिन विल गिव, गेव तो पास ही हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट में आना है. हाँ वेंकी, कैन नहीं, कैन तुम मॉडल ऑक्चुअली को चेंज करिए, उससे हैज गिवन हो गया तो पास्ट हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है. गिविंग कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में लाना है, गिविंग कंटिन्यूस हो जाएगा. हाँ हैज बीन गिविंग अगर करोगे तो वो कंटिन्यूस में, हैव बीन पास्ट हो गया ना. हाँ ठीक है, द डॉल्फिन गिव्स मी ऑल आई नीड, खत्म भाई साहब. हैड बीन वुड बीन खत्म, क्या क्या खिचड़ी बना रहे हो, सिंपल, तुमको प्रेजेंट परफेक्ट में लाना है, तुम कंटिन्यूस में क्यों जा रहे हो, हैज बीन गिविंग मी विल बी, तो ये सब भाई साहब जरूरत नहीं है ना, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लाना है इसको, तो डॉल्फिन गिव्स मी ऑल आई नीड, खत्म, ठीक है. ओके, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड विथ मिलिट्री, ठीक है, ये आपका भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है, तो 4, ओके, सोल्जर, सोल्जर, वेपन, हाँ, आर्ट, हाँ, ट्रूप्स, ओके,
हम यहाँ पे मतलब इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान सेंटर्ड। आर्मी, ठीक है। एनिमल, एनिमी, और कुछ? हाँ, आर्मर्स, ओके, आर्मर्स, ओके। बॉडी, बॉर्डर, बॉर्डर, ओके, बॉर्डर, ओके। एनीथिंग एल्स? एम्यूनिशन? नहीं, व्हीकल्स, व्हीकल्स तो भाई साहब रोड पे भी चलते हैं, उनका नहीं। एम्यूनिशन, हाँ। अरे और भी है ना भाई साहब, नेवी यूज कर सकते हो, नेवी भी तो आर्मी का पार्ट ही है। एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, टैंक्स, ठीक है, आर्टिलरी, ये सारे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। ही आस्क्ड, कैन यू कुक? जल्दबाजी में मत रहो भाई साहब, सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन उतना सिंपल नहीं होता है जब कन्वर्ट करते हैं तो। हाँ, कौन हिम? तुमको क्या मालूम हिम को किस? ही आस्क्ड। देखो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे ना, जैसे ये बोल रहा है ही आस्क्ड हिम, यहाँ पे दूसरा पर्सन प्रेजेंट है, आपको बताया गया क्या? क्या तीन लोग प्रेजेंट है यहाँ पे, एक जो आप सुन रहे हो और बाकी दो लोग में वार्तालाप हो रही है, क्या ऐसा दिखाया गया है? नहीं। तो आप अज्यूम करेंगे कि मिनिमम लोग हैं, मतलब आपसे ही पूछा जा रहा है ये, ठीक है। अरे फिर वही ही, हाँ, ही आस्क्ड मी, ये पहले मी पे आओ, क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ही आस्क्ड मी, फिर आगे, कैन आई कुक, कुड आई कुक? ही आस्क्ड मी वेदर आई कैन कुक, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन तुम लोग क्रिएट करते हो जब यहाँ पे बोलते हो ही आस्क्ड हिम और हर, यहाँ पे वो नहीं लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया नहीं गया कि थर्ड पर्सन का प्रेजेंस है, ठीक है। सो अज्यूम दैट द क्वेश्चन इज पुट फॉरवर्ड टू यू, ठीक है, एंड आंसर इट अकॉर्डिंगली, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप एक थर्ड पर्सन को फिर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ही आस्क्ड मी वेदर आई कैन कुक, ठीक है। he asked me whether I can cook, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रॉबर्ट asked John, how old are you? I am 13 years old, she replied. She, Robert asked John that how old is she? How old was she? Okay, फिर she said I am 13 years old. She replied, हाँ, she replied with, ठीक है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, देखो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। रॉबर्ट आस्क्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉन अबाउट हर एज, सिंपल है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। रॉबर्ट आस्क्ड जॉन अबाउट हर एज, शी रिप्लाइड, अब यहाँ पे दैट लगा दो भाई साहब, शी रिप्लाइड दैट शी वाज 13 years old, शी रिप्लाइड दैट शी वाज 13 years old, ठीक है, क्लियर है, ओके। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंसेस इन होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। फीट और ये फीट, आफ्टर रनिंग माई फीट स्टार्टेड पेनिंग, ओके। फीट मतलब आपका जो पैर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से आफ्टर रनिंग माई फीट पेन, आई डेवलप अ सोर फीट आफ्टर द मैराथन, ठीक है।
यहाँ पे फीट मतलब पैर की बात हो रही है, फीट मतलब यहाँ पे क्या है, एक अचीवमेंट, हाँ, फीचर, फीट मतलब एक अचीवमेंट, आई फीट यू, ये क्या होता है? he achieved this feat after a lot of discipline or struggle, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो after a lot of hard work he achieved his feat, ठीक है। फीट मतलब यहाँ पे भाई साहब जो अचीवमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, रीराइट अ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, वर्किंग, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्किंग कहाँ कंटिन्यूअस हो गया ना, कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, ये आईएनजी नहीं चाहिए भाई साहब, आई वर्क्स फॉर वन मंथ, आई वर्क फॉर अनिल फॉर अ मंथ, तो ये तो कुछ भी नहीं बन रहा भाई साहब, ना पास्ट, आई वर्क फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लेकिन ये क्या हो रहा है, आई वर्क फॉर अनिल, ये तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन जब तुम फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ बोले तो पास्ट में जा रहे हो ना, फॉर दिस मंथ, क्यों अगले महीने काम नहीं करेंगे? अरे भाई साहब, इट्स बीन अ मंथ विथ मी वर्किंग, अरे वर्किंग नहीं होगा, इट्स बीन अ मंथ वर्क, यार, month that I work for Anil, in a month that I work for Anil, ठीक है। इट्स बीन अ मंथ दैट आई वर्क फॉर अनिल, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्मेट जाना चाहिए, यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट बोल दिया है ना तो आप इस कंटिन्यूअस फॉर्मेट आईएनजी को रिप्लेस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, विदाउट चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द sentence, begin the following sentences with our inaction, children are questioning our inaction, our inaction were question, वर होगा, वहां पे गलती कर रहे हो, हाँ, आर इनएक्शन इज होगा या वर होगा? देखो एक्शन क्या है, एक्शन सिंगुलर वर्ड है, इनएक्शन भी सिंगुलर वर्ड है, तो उसके साथ तुम आर नहीं लगा सकते, इट हैज टू बी इज, ठीक है। हाँ, आर इज प्लूरल, बट एक्शन या इनएक्शन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। सो यहां पे हो जाएगा भाई साहब, आर इन एक्शन, एज इट हैज बीन स्टेटेड, आर इन एक्शन इज being questioned, is being questioned by children, ठीक है। तो आर इनएक्शन इज बीइंग क्वेश्चन बाय चिल्ड्रन, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे एक्शन या इनएक्शन जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, भले ये प्लूरल है, ठीक है। द बंच ऑफ पीपल आउट हियर व्हेन वी आर सेइंग आर इज प्लूरल, बट दिस एक्शन और इनएक्शन, दिस एज अ वर्ब इज सिंगुलर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड हर, शी सेड आई एम, तू कंफ्यूज हो जाता है, हाँ, आई आस्क्ड हर वेदर शी वाज हंग्री, और इसका नहीं नहीं,
आपने दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़े, राइट, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों में फर्क क्या है? नेगेटिव में कुछ नेगेशन रहता है, नो नॉट ऐसा कुछ रहेगा। एफर्मेटिव मतलब आपका पॉजिटिव सेंटेंस है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से अगर हमने यहाँ पे लिखा आई आस्क्ड हर वेदर शी वॉज, हो गया ना भाई साहब। जैसे तुम इनडायरेक्ट में जाते तो पास्ट टेंस हो जाएगा ना। आई आस्क्ड हर वेदर शी वॉज हंग्री, शी रिप्लाइड विथ एन अफर्मेटिव, लिख दो भाई साहब क्या जाता है, she replied with an affirmative that she was, that she was, ठीक है। ऐसे भी हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, she replied with a yes और she replied that she was, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप अफर्मेटिव यूज करते हैं। हाँ जी, ओके। प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड म्यूजिक, वर्ड रजिस्टर, हाँ, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ओके, सॉन्ग, बीट, ओके, बीट, लिरिक्स, ओके, और सिंगर, ओके, हाँ, रिदम, ओके, रागा, रागा नहीं, वक्त पागल, आपको इंग्लिश वर्ड यूज करने, हाँ हाँ, कॉन्सर्ट, ओके, क्या, वर्स, हाँ, पिच, फ्रीक्वेंसी, ओके, okay. Dr. Kalam's own life was nourished by multiple faiths. Begin the sentence with multiple faiths. Dr. Kalam's own life was nourished by multiple faiths. Multiple faiths were नहीं, अरे नरिश मतलब उनके जो मानसिकता है उसको नरिशमेंट मिला, उसको आहार मिला। तो मल्टीपल फेथ्स वॉज उसके, भाई साहब सीधा लिखो ना, नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, बस हम खत्म। मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, ठीक है, क्लियर है, ओके। रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर डैश दैन। As soon as we went to a rocky beach, we saw the spread of the majestic ocean. अरे उससे स्टार्ट करना है, नो सूनर से। नहीं नहीं नहीं, नो सूनर वी विल क्यों होगा, फ्यूचर में क्यों जाएगा, या अरे भाई साहब एज सून एज जहां पे है उसको हम काट देंगे इसको, क्योंकि जैसे नो सूनर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो भाई साहब नो सूनर, नो सूनर वी वेंट टू अ रॉकी बीच, यहाँ पे भाई साहब इस कॉमा की जगह पे ध्यान लगा दो, ठीक है, बस सिंपल है। देन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन, सिंपल, ठीक है। जब भी आपका ऐसा सेंटेंस रहेगा एज सून एज को हटाकर नो सूनर लिख देंगे, और जहां पे भी आपका सेंटेंस टूट रहा है इन टर्म्स ऑफ अ कॉमा, वहां पे आप ध्यान लगा दो, ठीक है। सो नो सूनर वी वेंट टू अ रॉकी बीच देन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। टू हैज डायरेक्टेड 2009 का 2019 का क्वेश्चन है, आई मस्ट टेल द ट्रूथ, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी। कौन सा है मॉडल ऑक्सिलरी, अमित? मस्ट, और ये क्या डिनोट करता है, फंक्शन क्या है? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं डिनोट करता, कुड पॉसिबिलिटी डिनोट करता है, कैन एबिलिटी डिनोट करता है, हाँ, पास्ट एबिलिटी, पास्ट हैबिट, मस्ट नहीं रे, मस्ट पास्ट हैबिट कैसे डिनोट करेगा? जैसे कैन आपका क्या डिनोट करता है, एबिलिटी, कुड पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो आपका मस्ट, आई मस्ट टेल द ट्रूथ,
हाँ ये सही, लेकिन मैंने पास्ट हैबिट सुना नहीं है। हाँ यहाँ पे जो बोल रहा है वो सही है कि पास्ट हैबिट भी डिनोट कर सकता है। पास्ट हैबिट, आई मस्ट टेल द ट्रूथ, यहाँ पे फंक्शन, ठीक है देखना पड़ेगा भाई साहब ये पास्ट हैबिट। ओके, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस एज नाउन एंड अ वर्ब। वॉच एक नाउन और वर्ब में यूज करना है। शीतल, नाउन, एक मिनट, नाउन, अरे भाई साहब नाउन क्या हो जाएगा? व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, सिंपल। वॉच को जब हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो वो नाउन हो गया ना। ठीक है, अगर हमने पूछा यहाँ पे एकदम सिंपल सा सेंटेंस, व्हाट टाइम इज योर वॉच शोइंग, और व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? इस वॉच को आप कैसे यूज कर रहे हैं? नाउन, यू आर यूजिंग इट एज अ नाउन। अभी वर्ब, आई वॉच मूवी, अच्छा जी, बोलिए और क्या हो जाएगा? नहीं, वॉचमैन वाज वॉचिंग ओवर द थीव्स, a lot of time is wasted these days in watching reels, टीवी, जो भी आप लिखना चाहें भाई साहब, ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज वॉच जो आप यूज कर रहे हैं, दिस वॉच इज यूज एज अ वर्ब। यहाँ पे आप वर्ब के हिसाब से यूज कर रहे हैं, इसको आप नाउन के हिसाब से यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया, बिगिन द सेंटेंस विथ नो अदर। ओके, सो अगर हम भाई साहब यहाँ पे सेंटेंस को चालू करें, इज मोस्ट ब्यूटीफुल, तो नो अदर मॉन्यूमेंट, no other monument in India is as beautiful, is as beautiful as Taj Mahal, ठीक है। Taj Mahal is more, वही सेम सेंटेंस है, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज करना है, फिर से लिखना है। हाँ, तो Taj Mahal is more beautiful than any other monument in India, than any other monument in India, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। नो, as soon as the thief escaped the family informed the police, तो इसका सिंपल क्या है भाई साहब? as soon as को काटो, यहाँ पे लिखो भाई साहब no sooner, ठीक है, no sooner the thief escaped, जहां पे कॉमा है उसकी जगह पे लगा दो भाई साहब then, हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है। no sooner the thief escaped than the family informed the police, ठीक है, then लगेगा यहाँ पे, जहां पे भी no sooner लगेगा उसके साथ then लगेगा, ठीक है, ओके। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ये आपका देखो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री क्यों? क्योंकि बेस्ट आपका सुपरलेटिव फॉर्मेट है, ठीक है, तो आप बेटर यूज कर सकते हैं किसमें? कंपैरेटिव में। और अगर आपका पॉजिटिव हो तो हाँ गुड, ओके, बताइए पॉजिटिव अगर आपको यूज करना है तो क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव, it is one of the best decisions I have ever made, हाँ it is, अगर आपको कंपैरेटिव करना है तो क्या लिख सकते हैं? कंपैरेटिव, इट इज बेस्ट है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज बेटर देन ऑल डिसीजंस, इट इज बेटर देन ऑल डिसीजंस दैट आई हैव एवर मेड, इट इज बेटर देन ऑल डिसीजंस दैट आई हैव एवर मेड। इसका क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव में? अरे बोलो ना भाई साहब, अभी आप बोले ना कि गुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। नो अदर डिसीजन, नो अदर डिसीजन is as good as this decision made by me, हो गया भाई साहब, ठीक है। नो अदर डिसीजन इज एज गुड एज दिस डिसीजन मेड बाय मी। आपको भाई साहब यहाँ पे पॉजिटिव यूज करना है ना, गुड बेटर बेस्ट, ये होता है। पॉजिटिव में हो गया गुड,
आपका कंपैरेटिव में हो गया बेटर और सुपरलेटिव में हो गया आपका बेस्ट। ठीक है, तो अगर इस वर्ड को यूज करना है बेस्ट का, अगर पॉजिटिव फॉर्मेट यूज करना है तो नो अदर डिसीजन इज एज गुड एज दिस डिसीजन मेड बाय मी, इट इज बेटर देन ऑल डिसीजन दैट आई हैव एवर मेड। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके। Pick out the modal auxiliary and state its function. Lack of rain could cause drought. Could modal auxiliary हो गया भाई साहब, और इसकी क्या है भाई साहब? Possibility. Good. ठीक है, modal auxiliary भाई साहब हो गया आपका could, and this is expressing what? A possibility. ठीक है, okay. Make two sentences by using the given word as a noun and as a verb. Water. ना, हाँ, okay. Water in the lake was still. Okay, water ये noun है या verb? Water in the lake was still. तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, वर्ब में हाँ, क्या क्या क्या? ओके, सो आई और द फार्मर वॉज वाटरिंग द क्रॉप्स, वॉज वाटरिंग। अभी जैसे वाटरिंग कर रहे हो मतलब आपका भाई साहब ये वर्ब हो गया, वाटरिंग द क्रॉप्स और द फ्लावर्स वॉटेवर। ठीक है, तो ये आपका वर्ब फॉर्मेट में हो गया, दिस इज बेसिकली वर्ब। ठीक है, ये आपका नाउन फॉर्मेट में है। ठीक है, क्लियर? ओके, pick out the modal auxiliary and state its function. Could I use your computer for surfing net? Huh? Could. Okay, could is basically what? यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी। ओके ओके, पॉसिबिलिटी। ओके okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your valuable time.